हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमारी क्रैश कोर्स सीरीज़ जो चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि हाउ द ब्रिटिश वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया and how they emerged as one among the many European powers that came to India. How British were able to establish their predominance in India. तो 17th 18th सेंचुरी के आसपास की ये स्टोरी है हमारी, जो आज का टाइम पीरियड है, राइट। विल सी हाउ 17th century British fought and tried to establish its hold, and how in 18th century it expanded its control in Indian subcontinent. So let's start the story. So coming of Europeans, discovery of sea route via the Cape of Good Hope. Many European trading companies came to India and established their trading centers because of this. तो लैंड रूट से तो बहुत पहले से ही हम लोग वी हैव सीन इन एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, कि देयर वाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, देयर वाज इंटरेक्शन विद द ग्रीक्स. दिस वाज लैंड रूट. बट सी रूट में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ केप ऑफ गुड होप, दे एंटर्ड इंडिया एज ट्रेडर्स एट द आउटसेट, but by the passage of time indulged in the politics of the country and finally established their colonies. Commercial rivalry among the European powers led to political rivalry, and ultimately the British succeeded in establishing their rule in India. 17th century में 1612 British company gained footing in India after Mughal Emperor Jahangir granted the rights to establish a factory. अब ये जो फैक्ट्री थी, दिस वॉज नॉट रियली अ फैक्ट्री एज इन द कन्वेंशनल टर्म मैन्युफैक्चर नहीं कुछ होता था. इट वॉज एसेंशियली अ ट्रेडिंग फैक्ट्री. तो मर्चेंट्स यूज टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, कीप इट देयर, एंड दे यूज टू ट्रेड विद यूरोप in these products. So it was essentially really a storehouse, a warehouse. So a factory which was a trading post in Surat to Sir Thomas Roe, a representative diplomat of Queen Elizabeth I of England. तो 1612 में फरमान इशू किया जहांगीर ने. किनको? Sir Thomas Roe, who was a representative of Queen Elizabeth I. तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज वास्को डा गामा reached Calicut in 1498 and was received by the Zamorin, who was the ruler of Calicut. Pedro Alvarez Cabral arrived in 1500 and Vasco da Gama also made a second trip in 1502. तो सबसे पहले 1498 में came the Portuguese. They established trading stations at Calicut, Cannanore and Cochin. First governor of Portuguese in India was Francis de Almeida. तो ये सब facts. He introduced the blue water policy of maintaining superiority at sea to protect politico-economic interests on land. तो ही said कि अगर हम अपनी सी में superiority maintain करके रखेंगे तो ही लैंड पे, इंडियन लैंड पे जो हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे. अगर हमारी सी की सुपीरियरिटी हम नहीं मेंटेन कर पाते, वी विल हैव टू फेस कंपटीशन एंड आवर इंटरेस्ट ऑन लैंड, आवर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन लैंड माइट फेस अ चैलेंज. तो नेक्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज टेरिटरीज अल्फोंसो डी एल्बुकर्की, 1509. 1510 में ही कैप्चर्ड गोवा from the ruler of Bijapur. Thereafter Goa became the capital of Portuguese settlements in India. So गोवा किन्होंने जीता? एल्बुकर्की. तो वी हैव सीन, पहले भी हमने मेडिवल में देखा है कि गुजरात के रूलर के अगेंस्ट भी पोर्चुगीज had a war, they waged a battle, and after which due was accorded to them. तो एल्बुकर्की captured Malacca and Ceylon. He also built a fort at Calicut. Albuquerque died in 1515. तो 16th century में ही
पोर्चुगीज एक्सपेंशन हो रही है, leaving the Portuguese as the strongest naval power in India. Later, Portuguese established themselves at Daman, Salsette, and Bombay on west coast, and at Santhome near Madras, and Hugli in Bengal on the east coast. So 16th century, Portuguese are the predominant power. To maintain superiority at sea, Portuguese introduced Cartez system. तो ये आपको पता होना चाहिए, which involved all ships trading in Indian waters to stop, take permission and pay customs duty to the Portuguese at Goa. So this is how they were able to maintain their supremacy. However, the Portuguese power declined in India by the end of 16th century. They lost all their possessions in India except Goa, Diu and Daman in the next century. So 16th century belonged to the Portuguese, but not the 17th century. Dutch East India Company was established in 1602. They established their settlements at Masulipatam, Pulicat, Surat, Karaikal, Nagapattinam, Chinsura and Kasim Bazar. 17th century, they won over the Portuguese and emerged as the most dominant power in European trade in the East. So 17th century belonged to the Dutch. They were the predominant power in 17th century. Pulicat was their main center in India, and later it was replaced by Nagapattinam. In mid 17th century, the English began to challenge the Dutch. The Anglo-Dutch rivalry resulted in the Dutch establishing their control over Spice Islands, which is Indonesia, but the English emerging as a dominant power in India. So 17th century, Dutch versus English, and the result of this was that Dutch were able to establish their control in Indonesia and English in India. नहीं तो शायद हम आज इंग्लिश की जगह डच बोल रहे होते. The English East India Company was established in 1600. Charter was issued by Queen Elizabeth of England. Captain Hawkins arrived at the royal court in 1609 to seek permission, but was refused by the Mughal emperor because of Portuguese pressure. 1609 में हमने देखा कि 16th century में Portuguese are a power, and because of their pressure, Mughal emperor declined. Later, circumstances so developed that Jahangir was convinced, he was persuaded to issue a farman to the English that they be allowed to establish a trading factory, and the first one was at Surat in 1613. तो 1612 में इंग्लिश को फरमान जारी किया गया जहांगीर की तरफ से, in the name of Emperor Jahangir. Sir Thomas Roe obtained permission from Jahangir to establish English trading factories in different parts of country. The English established their factories at Agra, Ahmedabad, Baroda and Bharuch by 1619. 1613 में सूरत. 1639 Francis Day founded the city of Madras, where the Fort St. George was built. So Madras. 1668 English East India Company acquired Bombay from Charles II, the then King of England, who had received it from the Portuguese. तो इसकी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Catherine of Braganza, a Portuguese queen, was married to the King of England, and in dowry the British received the island of Bombay. तो 10 रुपए की कीमत में बॉम्बे हासिल हुआ इंग्लैंड के किंग को, एंड ही गेव इट टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि ये जो इंडिया में ये जो टेरिटरी है ये मेरे पोजीशन के अंडर आ गई है. नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ इट टू अर्न मोर मनी फॉर द एम्पायर ऑफ इंग्लैंड. तो 1668 में दे गॉट बॉम्बे एज वेल. 1690 English factory was established at a village
Sutanuti by Job Charnock. Later it developed into the city of Calcutta, जहाँ पे Fort William was built. So 1690 onwards, Calcutta. So Madras, Bombay, Calcutta, these became the 3 presidency towns of English settlements in India. 3 big important towns under the British. The French East India Company was formed by 1664 by Colbert, a minister under Louis XIV. First French factory in India was established at Surat by Francis Caron. Francis Martin founded Pondicherry in 1673. So Surat, then Puducherry. Other French factories in India were Masulipatam, Chandranagore, Mahe and Karaikal. So French. Then Danes' first factory at Tranquebar in 1620. Later settlements at Serampore. But they failed to strengthen themselves in India and sold all their settlements in India to the British in 1845. So the Portuguese, the Dutch, the English, the French and the Danes. 5 European powers we've seen, out of which the English, the British will emerge powerful. We'll see how. तो 17th century में we saw कि the English and Dutch faced off, जिसके बाद Dutch became powerful in Indonesia and the English became powerful in India. In 18th century, the English will face a tough challenge from the French East India Company. It was also influenced by events in Europe जहाँ पे England versus France चल रहा था. तो the same events influenced Indian politics also. इंग्लिश की और फ्रेंच की आपस में इंडिया में पॉलिटिक्स चल रही थी, प्लस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फॉर एग्जांपल डेक्कन रीजन, कार्नेटिक रीजन जो था, वहाँ पे जो इंडिया में पॉलिटिक्स चल रही थी आपस में नवाबों में कि कौन दूसरे को हरा के अपनी टेरिटरी बड़ी कर सकता है, उस पॉलिटिक्स में द इंग्लिश एंड द फ्रेंच इंटरफेयर्ड और साइड्स लेने लगे. फॉर एग्जांपल कार्नेटिक में किंग 1 वर्सेस किंग 2 हो रहा है, तो इनकी पॉलिटिक्स में नाउ इंटरफेरेंस, इंग्लिश सपोर्ट 1, द फ्रेंच सपोर्ट अदर, तो किंग 1 वर्सेस इंग्लैंड एंड किंग 2 वर्सेस फ्रेंच हो रहा है, एंड उसकी वजह से वन इज इमर्जिंग एज द विनर एंड द अदर इज लूजिंग आउट. तो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में दिस स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, एंड उसके बाद आफ्टर अ सीरीज ऑफ वॉर्स वन ऑफ द पावर्स वी नो इंग्लिश इमर्ज पावरफुल, एंड इस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को हम कार्नेटिक वॉर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये इंडियन किंग्स के अराउंड ही ये पॉलिटिक्स चल रही थी. तो कैसी थी देखते हैं. Beginning of 18th century, the English and the French were competing with each other to establish their supremacy in India. Downfall of Mughal Empire, 1707 if you remember, death of Aurangzeb. तो 17th century, early 17th century से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर का. तो now space is being opened up for English and the French to establish their supremacy. पूरी 18th century we see weak Mughal emperors and English and French trying to consolidate their powers. So 18th century में हमारे पास क्या क्या फिनोमिना आ रहे हैं. एक तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, राइट. दूसरा हमने देखा था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, एंड तीसरा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एंड ये आपस में तीनों इंटरलिंक्ड हैं. डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ डेक्कन अंडर निजाम उल मुल्क. कार्नेटिक रीजन दो नॉमिनली अंडर निजाम्स सुजेरेंटी वॉज रूल्ड बाय एन ऑटोनमस नवाब, एंड यहां पे इंटरफेरेंस शुरू हो गई. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 टू 1748. The cause of the war was the outbreak of Austrian War of Succession in Europe in 1740 कि एक राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुए.
French attacked the English in 1746. The English sought help from the Nawab of Carnatic, Anwaruddin, but the French concluded a treaty with his rival Chanda Sahab. So King 1 versus King 2. इंग्लिश सीख हेल्प इसकी क्योंकि फ्रेंच ने इन्हें अटैक कर दिया है, एंड फ्रेंच इसके राइवल के साथ ट्रीटी कर लेते हैं, इन केस आई विल बी फाइटिंग दिस किंग, तो आप जो किंग 2 है आप मेरी हेल्प करना. तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसमें इंटरमिंगल हो रही है. तो ये सब चल रहा था. मीन टाइम ट्रीटी ऑफ एले-शैपेल वॉज कंक्लूडेड इन 1748 टू एंड द ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर, कि जो यूरोप में इंग्लिश एंड फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे केम टू एन एग्रीमेंट, ट्रीटी साइन हुई. दस दी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर केम टू एन एंड. तो इंडिया में भी जो भी इनकी राइवलरी थी वो यहाँ पे टेम्पररीली स्नप कर दी गई. बट डिफरेंसेस तो हैं क्योंकि डिफरेंट साइड्स ले ली हैं दोनों ने. एक राजा को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, एक को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं. So as they continued to take opposite sides in the internal politics, it resulted in the Second Carnatic War, 1749 to 1754. Now, as you can see, this is preceding the Battle of Plassey in 1757. तो अभी ब्रिटिश ने अपने आप को establish नहीं किया है as a political power. अभी trading power ही है, लेकिन local politics में interfere कर रहे हैं, influence कर रहे हैं ताकि उनका फायदा हो सके eventually. ड्यूप्ली जो कि फ्रेंच गवर्नर थे, ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ मुजफ्फर जंग हु वांटेड टू बिकम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक है, लेकिन एक और इंसान जो हार्बर करता है ड्रीम्स निज़ाम ऑफ हैदराबाद बनने की, फ्रेंच उसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड चंदा साहेब को सपोर्ट कर रहे हैं, हु वाज द एस्पिरेंट फॉर द थ्रोन ऑफ आर्कॉट विच इज कार्नेटिक. तो रीजनल पॉलिटिक्स, हैदराबाद में एक निज़ाम है, कार्नेटिक में एक आर्कॉट में एक निज़ाम है कार्नेटिक में. तो हैदराबाद में किसी एक राइवल को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, कार्नेटिक में भी एक राइवल को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच. द एलाइज डिफीटेड एंड किल्ड नवाब अनवरुद्दीन. नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया इन्होंने. अनवरुद्दीन ये थे नवाब ऑफ कार्नेटिक, जैसे आप देख सकते हैं. तो कार्नेटिक में द फ्रेंच and Chanda Sahib are successful. After this victory, Muzaffar Jung became the Nizam and Chanda Sahib the Nawab of Arcot. French officer Bassi was stationed in Hyderabad. तो first battle goes to the French कि उन्होंने मुजफ्फर जंग जो उनका बंदा था उसको निज़ाम बना दिया, एंड चंदा साहिब जो उनका बंदा था उसको नवाब ऑफ आर्कॉट बना दिया. मोहम्मद अली हु वॉज द सन ऑफ अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन नवाब ऑफ आर्कॉट, तो ही एस्केप्ड टू तिरुचिरापल्ली, ट्रिची. द इंग्लिश नाउ सपोर्टेड मोहम्मद अली. इंग्लिश ने कहा कि तू बेटा परवाह ना कर, बाप की मौत का बदला हम लेंगे और हम तुझे सपोर्ट करेंगे. So English now supported Muhammad Ali and captured Arcot under Robert Clive to relieve besieged Muhammad Ali. Chanda Sahib was captured and beheaded. So English plus Muhammad Ali, they attacked and Robert Clive lead कर रहे थे इंग्लिश को. फेमस पर्सनैलिटी, इनके बारे में आगे भी देखेंगे. चंदा साहिब वॉज कैप्चर्ड एंड बिहेडेड. मीनवाइल ड्यूप्ली वॉज रिप्लेस्ड बाय गुडेहू एज द फ्रेंच गवर्नर. द वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश, यूरोप में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई. तो उस नेगोशिएशन में इंग्लिश ने डिमांड किया कि आप भैया फ्रेंच जो आपके गवर्नर ड्यूप्ली हैं उनको रिकॉल कर लो. सो दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक. ड्यूप्ले इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक साबित हो रहे थे. अब ड्यूप्ले जो सबसे इम्पॉर्टेंट या पर्सन थे फ्रेंच के, जो फ्रेंच टेरिटरीज के गवर्नर थे इंडिया में, उनको किंग ने रिकॉल कर लिया एंड इंग्लैंड ने अपने रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था एक तरीके से वो हटा दिया. तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी खत्म हो गया. तो इवन दो द फर्स्ट बैटल हैड गॉन टू द फ्रेंच, सेकेंड में द ब्रिटिश वर इवेंचुअली सक्सेसफुल, एंड बिकॉज दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन सेंडिंग ड्यूप्ले बैक, तो एक तरीके से पलड़ा उनकी तरफ भारी रहा सेकेंड कार्नेटिक वॉर का.
देन थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 में। तो 7 years वॉर शुरू हुआ यूरोप में, एंड इसकी इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में, इसकी वजह से इसका जो फॉल बैक था वो इंडिया में भी आया, एंड दिस लेड टू थर्ड कार्नेटिक वॉर इन इंडिया। तो काउंट डी लेली, हु वाज द कमांडर ऑफ फ्रेंच फोर्सेस, ही रिकॉल्ड बसी फ्रॉम हैदराबाद। तो बसी हैदराबाद में स्टेशनड थे, किनके साथ? मुजफ्फर जंग के साथ। बट ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट डिफेटेड लाली एट वांडीवॉश इन 1760। सो बैटल ऑफ वांडीवॉश। बाय नेक्स्ट ईयर यानी कि 1761, all French possessions including Pondicherry were captured by the British. So third Carnatic War went firmly to the British. 7 years war came to an end by the Treaty of Paris in 1763. तो जब वो यूरोप में वॉर खत्म हुआ तो उसके एंड में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करेगी 1763 में, और उसी ट्रीटी के तहत ही थर्ड कार्नेटिक वॉर ऑल्सो केम टू एन एंड। द फ्रेंच वर फोर्स्ड, क्योंकि ये थर्ड कार्नेटिक वॉर तो बुरी तरह हार गए थे। फ्रेंच वर फोर्स्ड टू सीड ऑल देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स इन इंडिया, बट वर अलाउड टू रिटेन देयर प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्फाइंड टू पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड येनम। तो ब्रिटिश ने ये कंडीशन इम्पोज करी फ्रेंच के ऊपर कि ठीक है, आपकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, आपके जो पोर्ट्स हैं, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, आप वो रख सकते हो, लेकिन आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपने गिव अप करोगे, इन द सेंस कि जो भी पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम इंटरफेयर कर रहे थे ताकि हम एक राजा को हरा के अपने लिए फेवर्स मांग सकें, वो आप नहीं करोगे, अब वो सिर्फ ब्रिटिश ही करेंगे। सो फ्रेंच उस चीज़ में से बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिए गए। दस द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी केम टू अ क्लोज विद द ब्रिटिश सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच का यहाँ से बिल्कुल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उन्हें गिव अप करना पड़ गया। सो आफ्टर योर थर्ड कार्नेटिक वॉर, अब फ्रेंच को हटा दिया गया है, बट प्रॉब्लम्स अभी भी चलेंगी। Battle of Plassey, beginning of British political sway over India may be traced to the Battle of Plassey in 1757. English East India Company की forces versus सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। तो कल हमने जब बंगाल की बात करी थी तो we had seen कि सिराजुद्दौला was at the helm in 1757. So सिराजुद्दौला की forces versus English East India Company forces। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस कहानी में। बंगाल वॉज फर्टाइल एंड रिच प्रोविंस, मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट ऑफ इंडियाज प्रोविंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी had its servants had a highly profitable trading interest in the province. The company had secured privileges in 1717 under a royal फरमान by the Mughal emperor फारूक सियार। तो जहांगीर ने फरमान दिया था इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने का, बंगाल के लिए फरमान दिया था फारूक सियार में। हमने फारूक सियार देखा था सैयद ब्रदर्स के साथ, अगर आपको याद हो। दिस फरमान ग्रांटेड द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रीडम टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस एंड द राइट टू इशू पासेस और दस्तख्त फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। अब ये बहुत बड़ी इनको प्रिविलेज मिली हुई है। अब ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में। क्यों? क्योंकि टैक्स फ्री ट्रेड है। Matters came to a head in 1756 when the young Sirajuddaulah demanded of the English that they should stop misuse of the dastaks. Nawab also suspected that the company was hostile to him and was favoring his rivals for the throne of Bengal. तो नवाब को लग रहा था कि कुछ तो कुछ दाल पका रहे हैं ये ब्रिटिश, कुछ कंस्पिरेसी, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ these events Nawab was very suspicious of them. तो breaking point आया when without taking the Nawab's permission the company began to fortify, कि fortification शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने
नवाब की परमिशन लिए बिना, इस एक्सपेक्टेशन में कि आने वाले टाइम में फ्रेंच के साथ हमारी स्ट्रगल होगी, हमारी लड़ाई हो सकती है, तो हम तैयारी पहले रखें। फ्रेंच वर स्टेशनड एट दिस टाइम एट चांदरनगोर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1756 में कार्नेटिक वॉर फ्रेंच के साथ शुरू हो गया था। सो ब्रिटिश वर वेरी कि वो जो कार्नेटिक में वॉर शुरू हुआ है वो बंगाल में भी स्पिल करेगा, तो हमें उम्मीद है कि फ्रेंच के साथ हमारा यहाँ पे भी एक बैटल होगी। तो ये रीज़न देके उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, बट बंगाल में जो नवाब था उसकी परमिशन नहीं ली थी। तो द नवाब राइटली इंटरप्रेटेड दिस एक्शन एज एन अटैक अपॉन हिज सॉवरेनिटी, कि एक अगर गवर्नमेंट है, एक सॉवरेन पावर है, तो वहाँ पे वेपन्स रखने का अधिकार सिर्फ उसको है। तो ब्रिटिश ने जब फोर्टिफिकेशन करी तो इट वाज एन अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द नवाब, एंड द नवाब अटैक्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड कैलकाटा एंड देन रिटायर्ड टू सेलिब्रेट हिज इजी विक्ट्री। तो एकदम से अटैक किया, जल्दी जल्दी विक्ट्री हासिल कर ली और वापस चले गए सेलिब्रेशन करने के लिए कि हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। बट अभी सिर्फ बैटल जीती थी, वॉर नहीं। तो इंग्लिश इन रिवेंज ऑर्गेनाइज्ड अ कंस्पिरेसी विद द लीडिंग मैन ऑफ नवाब्स कोर्ट, मीर जाफर, मानिक चंद, अमीचंद एंड जगत सेठ। तो ये पावरफुल पीपल ऑफ सिराजुद्दौला's कोर्ट थे। इनके साथ इंग्लिश ने एक कंस्पिरेसी रची कि आप हमारा साथ दो अगली आने वाली बैटल में, एंड हम सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को ऑफर दिया कि आपको कमांडर इन चीफ बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर टुक दिस ऑफर एंड कंस्पायर्ड विद द ब्रिटिश अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासे हुई, जिसमें अ मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय ट्रेटर्स मीर जाफर एंड राय दुर्लभ took no part in the fighting. The Nawab was captured and put to death by Mir Jafar's son Miran. तो सिर्फ नाम की ही बैटल थी। ब्रिटिश ऑलरेडी उस बैटल में ये जानते हुए जा रहे थे कि इस बैटल का अंजाम क्या निकलेगा। The English proclaimed Mir Jafar the Nawab of Bengal. The company was granted undisputed right to free trade in Bengal, Bihar and Odisha as a result of victory in Battle of Plassey. तो Battle of Plassey immense historical importance रखता है. It paved the way for British mastery over Bengal and eventually the whole of India. तो नींव कहाँ पे रखी गई, फाउंडेशन कहाँ पे रखी गई? बैटल ऑफ प्लासे। तो एक बुक भी आती है जो ब्रिटिश रूल को डिस्कस करती है। द टाइटल ऑफ द बुक इज फ्रॉम प्लासे टू पार्टीशन। तो पार्टीशन 1947 में, प्लासे 1757 में। तो रफली दिस वाज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासे में जो ब्रिटिश को विक्ट्री मिली एक इंडियन नवाब को हरा के, इट बूस्टेड द ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड एट अ सिंगल स्ट्रोक रेज्ड देम टू द स्टेटस ऑफ अ मेजर कंटेंडर फॉर द Indian Empire. The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army, and control over Bengal played a decisive role in the Anglo-French struggle. तो 56 to 63 में जो 7 साल लड़ाई चली थी, तो उसमें शुरुआत में ही 57 में जब बंगाल ब्रिटिश के पास आ गया, तो बंगाल के रेवेन्यूज़ यूज़ करके इट गेव द ब्रिटिश एन एज कि जो ये 7 साल के वॉर में हमने देखा दी ब्रिटिश वर एबल टू आउस्ट द फ्रेंच और उनकी टेरिटरीज भी कैप्चर कर ली। उस पूरे प्रोसेस में रेवेन्यूज ऑफ बंगाल हेल्प्ड द ब्रिटिश अ लॉट टू विन दैट स्ट्रगल विद द फ्रेंच। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासे। नाउ विल टॉक अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। किसके साथ बैटल करी और क्यों बैटल हुई? मीर जाफर अब गद्दी पे तो बैठ गए, बट ही सून डिस्कवर्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मीट द फुल डिमांड्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स। तो बाय अक्टूबर 1760 द कंपनी फोर्स्ड हिम टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम।
तो ब्रिटिश मीर जाफ़र को लगा कि ये तो सारी इनकी मैं डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता, तो ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, आपसे तो बेटा हो नहीं पाएगा, तो आप गद्दी छोड़ दो। सो ही वॉज फोर्स टू एब्डिकेट इन 1760 मीर जाफ़र, एंड उनके सन इन लॉ मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया गया। तो ब्रिटिश को लगा कि मीर जाफ़र से तो काम नहीं हो रहा था, मीर कासिम हमारी सारी डिमांड्स पूरी कर देगा। मीर कासिम हाउएवर बिलाइड इंग्लिश होप्स, कि वो भी खरे नहीं उतरे, एंड ही सून इमर्ज्ड एज अ थ्रेट टू देयर पोजीशन एंड डिजाइंस इन बंगाल। तो मीर कासिम तो और भी एक कदम आगे थे कि वो तो ना ही सिर्फ मना कर रहे थे, वो तो एक तरीके से खतरा बन गए ब्रिटिश डिजाइंस के लिए। तो ब्रिटिश को लगा कि नहीं ये तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। मीर कासिम ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद शुजा उद दौला हु वाज द नवाब ऑफ अवध, एंड शाह आलम II, ही वाज द फ्यूजिटिव मुगल एम्परर। तो ही वाज द फ्यूजिटिव मुगल एम्परर एट द टाइम। तो इन तीनों ने अलायंस बनाया, मीर कासिम, शुजा उद दौला एंड शाह आलम II। इन तीन एलाइज ने अपनी कंसोलिडेशन करके लड़ाई करी कंपनी की आर्मी के साथ एट बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इन अक्टूबर 1764। बट the three allies lost their power. Buxar firmly and were thoroughly defeated at Buxar. The Battle of Buxar firmly established the British as masters of Bengal, Bihar and Odisha, and also placed Awadh at their mercy. तो पहले तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ही थे, बट क्योंकि इस बैटल में एलाइज में नवाब ऑफ अवध भी था, तो अवध वॉज ऑल्सो प्लेस्ड एट द मर्सी ऑफ ब्रिटिश। तो नवाब वॉज टू डिस्बैंड। अब ट्रीटी साइन हुई और उस ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ? द नवाब वॉज टू डिस्बैंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी एंड टू एडमिनिस्टर बंगाल थ्रू अ डेप्यूटी सूबेदार who was to be nominated by the company, and he could not be dismissed without the company's approval. तो बंगाल में क्या चेंजेस लेके आए कि नवाब रूल करेगा, अपनी आर्मी डिसबैंड करेगा, एंड बंगाल को डेप्यूटी सूबेदार के थ्रू रूल करेगा, एंड वो डेप्यूटी सूबेदार को ब्रिटिश और अदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी, एंड उसको उनकी परमिशन के बिना हटाया नहीं जा सकता। तो एक तरीके से नवाब को एक पपेट रूलर बना लिया और बोला कि हम रूल करेंगे बट तेरे थ्रू। शाह आलम II, जो मुगल एम्परर, फ्यूजिटिव मुगल एम्परर, ही वॉज स्टिल द टाइटुलर हेड ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड थ्रू हिम कंपनी ने कहा ठीक है, सिंबॉलिकली तो आज भी आप पावरफुल हैं, आपके दस्तखत चलते हैं, आपकी स्टैंप चलती है, तो उनसे फरमान इशू करवाया सिक्योरिंग द दीवानी विच इज़ द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो पहले तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से अपने थ्रू कर रहे थे, अब मुगल एम्परर से फरमान ले लिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो दीवानी राइट्स हैं, वो भी किसके पास चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो बैटल ऑफ बक्सर ने बिल्कुल ब्रिटिश की जो पकड़ थी बंगाल में वो कंसोलिडेट कर दी। प्लासे के बाद उन्हें फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिले थे, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी ही इतना पैसा कमा रहे थे कि वो फ्रेंच को हरा पाए थर्ड कार्नेटिक वॉर में। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो उन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गए। तो वहाँ पे जो टैक्सेशन राइट्स हैं कि खुद तो फ्री ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी जो ट्रेड कर रहे हैं, जो बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसमें से भी दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कलेक्ट करेगी। तो उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया। East India Company became the real master of Bengal from 1765. The Nawab depended for his internal and external security on the British. As the Diwan, the company directly controlled its revenues, while through the right to nominate the deputy Subedar, it controlled the Nizamat or the police and judicial powers. तो revenue भी control कर रहे हैं directly, एंड थ्रू इट्स डेप्यूटी सूबेदार निजामत या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं।
The same person acted in Bengal as the deputy Diwan on behalf of the company and as deputy Subedar on behalf of the Nawab. It held a great advantage for the British. They had power without responsibility. The Nawab and his officials had the responsibility of administration but not the power to discharge it. इसलिए इसको हम कहते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, कि पावर ही पावर है, जिम्मेदारी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, और नवाब की अकाउंटेबिलिटी ही अकाउंटेबिलिटी है बट पावर कुछ नहीं है करने की. उसके बाद अब ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1765 में इंप्लीमेंट किया गया. उसके बाद फ्रेंच को वॉर्ड ऑफ कर दिया ब्रिटिश ने, बंगाल में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया. नाउ दे विल माउंट on the expeditions to expand the British area of influence. तो बंगाल में अपने आप को स्थापित कर लिया और फ्रेंच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. तो अब वो दे विल एम्बार्क ऑन अ क्वेस्ट टू एक्सपैंड. तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर जो लड़ाइयाँ हुई, सो सबसे पहले मैसूर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे. तो फर्स्ट मैसूर वॉर 1769 में. बैकग्राउंड क्या है, 1766 में ब्रिटिश एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद द निजाम ऑफ हैदराबाद टू हेल्प हिम इन अटैकिंग हैदर अली ऑफ मैसूर इन रिटर्न फॉर द सेशन ऑफ नॉर्दर्न सरकार्स. तो डेक्कन में अगेन निजाम ऑफ हैदराबाद और मैसूर के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी है. ब्रिटिश यहाँ बैठे हैं, इनको कहा कि ठीक है आपकी हेल्प कर देंगे और उसके बदले में आपका जो ये नॉर्थन एरिया है ये आप हमें दे दीजिए, ठीक है. बट हैदर अली बीट द ब्रिटिश अटैक एंड फोर्स्ड द मद्रास काउंसिल टू साइन पीस ऑन हिज टर्म्स इन 1769 ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो पहला वॉर वेंट टू हैदर अली ऑफ मैसूर, ठीक है. वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कोई नहीं, यहाँ पे पंगा लेके देख लिया. अगला पंगा लिया मराठास के साथ. तो मराठास हमने देखा था मिडीवल में वीडियोस में कि 18th सेंचुरी में मराठास वर अ फॉर्मिडेबल पावर, कि 1760 में दे रीच्ड द पीक ऑफ देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशन हमने देखा था. एंड देन आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद अहमद शाह अब्दाली, मराठा एम्पायर बिगेन टू लूज its control over its vast territories and gradually थोड़ा सा वीकन होना शुरू हो रहा है. उसका फ़ायदा उठाने के लिए ब्रिटिश नाउ फाइट विद द मराठास कि चलो वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं. इन 1775 द इंग्लिश क्लैश विद द मराठास. रीज़न क्या था, इंटेंस स्ट्रगल फॉर पावर वॉज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम अमंग द मराठास बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द इन्फेंट पेशवा माधवराव टू led by नाना फडणवीस एंड रघुनाथ राव. तो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है, ब्रिटिश ने कहा फ़ायदा उठाते हैं, अटैक कर देते हैं. ब्रिटिश डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज बाय इंटरवीनिंग ऑन बिहाफ ऑफ रघुनाथ राव. तो किसी एक रूलर का तो नॉमिनल नाम लेना ही पड़ेगा कि इसकी हेल्प करने के लिए हम आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश अभी फॉरेन पावर है. पीपल ऑफ द इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट रूल ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. तो अभी ठीक है बंगाल में वो आ गए हैं बट क्रॉस कंट्री ये नहीं कर सकते. बंगाल में भी इनफैक्ट वो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि लोगों के लिए राजा ही रूल कर रहा है, बट राजा को पता है कि डेप्यूटी सूबेदार के बिना मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा ठीक है, दो फैक्शंस है. रघुनाथ राव को बोला कि हम आपकी हेल्प कर देंगे एंड आपकी हेल्प करके वील मेक यू दी मराठा रूलर, एंड उसके बाद आप हमें कंसेशंस देते रहना, ठीक है. बट नाइदर साइड वन विक्ट्री एंड द वॉर had come to a standstill. With the intercession of Mahatma Scindia, peace was concluded in 1782 by Treaty of Salbai, in which the status quo was maintained. तो ठीक है, पहला मराठा वॉर में भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव कुछ विक्ट्री नहीं मिली ब्रिटिश को, बट इट गेव द ब्रिटिश 20 years of peace with the Marathas, the strongest Indian power of the day. तो कम से कम उन्हें ये लग गया कि अब हमें मराठा से कोई खतरा नहीं है, मराठा के साथ ट्रीटी साइन हो गई है. एंड ये जो 20 साल का पीरियड था, ब्रिटिश यूटिलाइज दिस पीरियड टू कंसोलिडेट देयर रूल ओवर बंगाल प्रेसिडेंसी, while the Maratha chiefs frittered away their energy in bitter mutual squabbles. कि
मराठास अब आपस में लड़ते मरते रहे, एंड इट गेव द ब्रिटिश इनफ टाइम टू कंसोलिडेट देयर पावर्स इन बंगाल। सेकेंड मैसूर वॉर, अब मैसूर को भी छोड़ना नहीं है। वंस अगेन हैदर अली इन्फ्लिक्टेड डिफीट्स ऑन द ब्रिटिश। After Hyder Ali's death in 1782, the war was carried on by his son Tipu Sultan. Since neither side was capable of overpowering the other, peace was signed by them in Treaty of Mangalore in 1784, and both sides restored all conquests. कि status quo was sort of maintained, कि जहाँ तक पहुँच गए ठीक है वापस कर दिया जाए। तो अगेन इनडिसाइसिव सी बैटल्स निकली हैं, बट स्क्वर्मिशेस चल रहे हैं, कोशिश जारी है बाय द ब्रिटिश टू एक्सपैंड। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस, अब कॉर्नवालिस कम्स टू द थ्रोन। थर्ड ब्रिटिश एनकाउंटर विद मैसूर वाज मोर फ्रूटफुल। द वॉर एंडेड इन टीपूज डिफीट इन 1792। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली गेट्स अ विक्ट्री इन वॉर बाय द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। Tipu ceded half of his territories to the Allies. So this resulted in territorial expansion of the British. अब कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेस्ली। The next large-scale expansion of British rule in India occurred during the Governor Generalship of Lord Wellesley, who came to India in 1798. To achieve his political aims, he relied on three methods. पहला, subsidiary alliance system. Second, outright wars. And third, assumption of territories of previously subordinate rulers. तो तीन तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए। पहला तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, कि आप हमारी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो, नहीं कर रहे तो लड़ाई होगी, आउटराइट वॉर्स। एंड तीसरा मेथड कि कुछ जिन टेरिटरीज को हमने प्रीवियसली सबऑर्डिनेट कर दिया था, जिन रूलर्स को प्रीवियसली डिफीट कर दिया था, उनकी टेरिटरीज अब हम अज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, इसके बारे में देखते हैं कि ये था क्या। अंडर दिस the ruler of allying Indian state was compelled to accept the permanent stationing of a British force within his territory and pay a subsidy for its maintenance. तो बोला कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करते हो तो हम एक परमानेंट ब्रिटिश फोर्स आपके टेरिटरी में स्टेशन करेंगे और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा पानी भी आप ही दोगे, और उस रूलर के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा, एंड ही वुड एडवाइस द रूलर इन डिसीजन मेकिंग। एंड ना ही सिर्फ ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा, बल्कि कोई भी और यूरोपियन को उस राजा की सर्विसेज का पार्ट नहीं बनने दिया जाएगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश। एंड दैट कि वो जो रूलर है वो कोई भी ट्रीटी निगोशिएशन नहीं कर पाएगा किसी भी और रूलर के साथ विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। एंड बदले में ब्रिटिश कहते हम क्या करेंगे कि आपको आपकी एनिमीज से डिफेंड करेंगे। तो सिर्फ एक गारंटी देने की वजह से कि इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी वील डिफेंड यू इन वॉर, दे आस्क्ड फॉर अ लॉट ऑफ कंसेशंस फ्रॉम द रूलर। In reality, by signing a subsidiary alliance, an Indian state virtually signed away its independence, कि कोई भी decision making अब आपके हाथ में रही ही नहीं। It lost the right of self-defense, of maintaining diplomatic relations, of employing foreign experts, of settling its disputes with its neighbors. In addition, such a system tended to bring about internal decay of the protected state. तो ब्रिटिश सब कुछ डिमांड कर रहे थे और बदले में सिर्फ ऑफर कर रहे थे कि अगर आपको कोई अटैक करेगा हम आपको डिफेंड करेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली signed his first subsidiary treaty with the Nizam of Hyderabad in 1798। अब करनी क्यों पड़ी कि ब्रिटिश अब इस टाइम तक पावरफुल फोर्स बन चुके हैं,
एंड निज़ाम उतना पावरफुल नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, आपके साथ हमने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू साइन अ सब्सिडरी ट्रीटी इन 1801। क्यों? क्योंकि हरा तो उसे पहले ही चकिया उसे बोला कि नहीं, आपकी नहीं चलेगी, यू विल हैव टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आए एंड अपनी लड़ाइयाँ शुरू करी। पहले सब्सिडरी अलायंस साइन किया, अब फोर्थ मैसूर वॉर किया 1799 में। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर was not agreeing to the subsidiary treaty. He entered into negotiations for an alliance with revolutionary France. Wellesley attacked and defeated Tipu, but in a brief but fierce war in 1799, Tipu died while defending his capital, Seringapatam. तो टीपू नहीं मान रहा था, टीपू सुल्तान नहीं मान रहे थे ट्रीटी साइन करने के लिए, सब्सिडरी अलायंस, एंड सो देयर वाज अ बैटल एंड टीपू डाइड इन दैट बैटल, and nearly half of Tipu's dominions were divided between the British and their ally the Nizam, and the reduced kingdom of Mysore was restored to the original Odia dynasty, which is at the hem of Mysore even to this date. तो यहाँ तक वो अब हमारी कहानी इवॉल्व कर गई है। अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है? 1803 में देयर इज अ वॉर विद द मराठाज। तो फर्स्ट वॉर इनडिसाइसिव सा निकला था, स्टेटस को सा मेंटेन हो गया था। नाउ देयर इज अ सेकेंड मराठा वॉर। द मराठाज वर द ओनली मेजर इंडियन पावर लेफ्ट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। हैदराबाद ले आए, मैसूर ले आए, अवध ले आए, बचे मराठाज, who were a formidable power of the day and were outside their control. तो Maratha Empire at this point consisted of a confederacy of 5 big chiefs, namely the Peshwa at Pune, the Gaikwads at Baroda, the Scindias at Gwalior, the Holkars at Indore, and the Bhosles at Nagpur. The Peshwa being the nominal head of the confederacy. मराठा चीफ्स वर एंगेज इन बिटर फ्रेट्रिसाइडल स्ट्राइफ कि कौन रूलर बनेगा, कौन डोमिनेंट बनेगा। आपस में जो मराठा कन्फेडरेसी चीफ्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। 1802 में होलकर डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ पेशवा एंड सिंधिया, एंड पेशवा बाजीराव टू रश्ड इनटू द आर्म्स ऑफ इंग्लिश एंड साइंड द सब्सिडरी ट्रीटी एट बसई। तो पेशवा एंड सिंधिया हैड जॉइंड फोर्सेस टू फाइट होलकर। होलकर ने हरा दिया एंड पेशवा को लगा नहीं अब तो मुझे ब्रिटिश के पास ही जाना पड़ेगा। सो ही वेंट टू द ब्रिटिश एंड साइंड द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। इवन इन दिस मोमेंट ऑफ पेरिल दे वुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी। तो आपस में जो चारों पांचों बिग चीफ्स थे, इनमें आपस में अभी भी यूनिटी नहीं है। When Scindia and Bhosle fought the British, Holkar stood on the sidelines and Gaikwad gave help to the British. So Scindias and Bhosles versus British. Holkar साइड में बैठे हैं, गायकवाड़ यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं कि इन दोनों को तो हराओ, इनको तो ख़त्म करो, साइड करो। Holkar took up arms. Bhosle and Scindia nursed their wounds. तो आपस में चारों मिल के ब्रिटिश से नहीं लड़ रहे, एक एक करके लड़ रहे हैं। एंड जब कोई 2 लड़ रहे हैं तो बाकी 3 और 4 बैठ के साइड में तमाशा देख रहे हैं। बट यशवंत राव होलकर प्रूव्ड मोर देन अ मैच फॉर द ब्रिटिश। तो इनमें जब लड़ाई हुई तो सिंधिया एंड भोसलेज ने हेल्प नहीं करी होलकर की कि जब हम लोग लड़ रहे थे तो आप साइड पे बैठे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी discovered that the policy of expansion through war was proving costly. Lord Wellesley was therefore recalled from India and the company made peace with Holkar by Treaty of Rajghat. So, अब
सेकेंड मराठा वॉर में भी 1803 to 1805, 2 साल, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, कंटिन्यूस मराठा चीफ्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश की स्ट्रगल्स या टसल्स चल रहे हैं, बट कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिल पा रही है. इवेंचुअली जो ब्रिटेन में किंग था उनको लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो कर रहे हैं तो ये सही नहीं कर रहे, कि जितना भी पैसा कमा रहे हैं सारा पैसा तो इंडिया में लड़ाई करके वॉर्स में खर्च कर दिया जा रहा है. तो जो लॉर्ड वेलेस्ली ने पॉलिसी अपनाई थी सब्सिडरी अलायंस के बाद डायरेक्ट वॉर की, दे वर लाइक कि दिस इज़ नॉट प्रूविंग टू बी वेरी फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव और फाइनेंशियली वायबल और फाइनेंशियली जस्टिफाइबल. तो आप जो ये कर रहे हैं, यू कम बैक टू ब्रिटेन, वी डोंट लाइक दिस टेरिटरी. सो ही लॉर्ड वेलेस्ली वॉज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया एंड मराठा जो होलकर्स के साथ पीस साइन कर ली गई, ट्रीटी ऑफ राजघाट की. ठीक है, आप हमें तंग नहीं करो, हम आपको तंग नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रीटी साइन कर ली गई. तो इसके बाद व्हेन द नेक्स्ट गवर्नर जनरल विल कम इन, तो पॉलिसीज विल बी स्लाइटली डिफरेंट. तो वो पॉलिसीज क्या थी वो देखते हैं. तो नेक्स्ट है एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स. पिछले में हमने देखा था लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसीज. अब हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स. 1813 में ही कम्स, 1814 में ही वांट्स टू एक्सपैंड एंड नेपाल के साथ ही फाइट्स अ वॉर. आफ्टर अ फियर्स स्ट्रगल फॉर 2 years, ट्रीटी ऑफ सगौली was concluded. The Gurkhas gave up their claim over the Tarai region and ceded the area of Shimla Hills, Kumaon and Garhwal to the British. Gurkhas also agreed to keep a British resident at Kathmandu. So this again a turning point. Shimla, Kumaon and Garhwal. Kumaon and Garhwal hills आ गई, जिनमें you have your major tourist spots like your Mussoorie and Nainital etc etc, शिमला. तो ये सारे जितने भी आज हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, दे वर टेकन फ्रॉम द गुरखाज इन द नेपाल वॉर, फर्स्ट नेपाल वॉर 1814-1816, एंड ब्रिटिश रेजिडेंट भी वहाँ पे प्लेस कर दिया गया. देन another war he fights. Now this is the third Maratha war. This is by Lord Hastings. Second Maratha war had shattered the power of Maratha chiefs, but not their spirit. They made a desperate last attempt to regain their independence and the old prestige in 1817. तो पिछले में fierce battle हुई थी and their power was shattered but not their spirit, and the lead in organizing a united front of the Maratha chiefs was taken by the Peshwa. पेशवा ने कहा कि मेरे अंडर यूनाइट करो, we'll fight the British and we'll recover our lost prestige, glory and territories. Lord Hastings, who was the Governor General, he compelled Scindia to accept British suzerainty and defeated the armies of Peshwa, Bhosle and Holkar. सिंधियाज को बोला कि आप बीच में नहीं पड़ो, आप ब्रिटिश सुजेरेंटी एक्सेप्ट करो, एंड पेशवा, भोसले एंड होलकर की जो कंबाइंड आर्मी थी उसको आउस्ट कर दिया, डिफीट कर दिया. पेशवा वॉज डीथ्रोन्ड एंड पेंशनड ऑफ. पेशवा को बोला कि नहीं, आपकी गद्दी गई ख़त्म, आप आज से हमारी पेंशन पे जियोगे. होलकर एंड भोसले एक्सेप्टेड सब्सिडरी फोर्सेज. All the Maratha chiefs had to cede to the company large tracts of their territories. And to satisfy Maratha pride, a small kingdom of Satara was founded out of the Peshwa's lands and given to the descendant of Chhatrapati Shivaji, who ruled it as a complete dependent of British. तो again कहने को तो किंगडम ऑफ सतारा कार्व कर दी गई, जो छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट को दे दी गई, उसको वहाँ पे उसका रूलर बना दिया गया. बट दिस इज़ ओनली सिम्बॉलिक कि ठीक है आपके रूलर एक मराठा चीफ है, छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट है, बट एक्चुअली में टेरिटरीज भी खुद ले ली, और जो छोटी सी किंगडम बनाई है वो भी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश है. तो सिंधियाज,
होलकर्स, भोसलेज सबको अपने अंडर डिपेंडेंट बना दिया और किंगडम ऑफ सतारा एक कार्व आउट करके पेशवा छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट को देके उसको भी अपना डिपेंडेंट बना दिया। और पेशवा जो कि द चीफ मिनिस्टर अमंग मिनिस्टर्स था, जो कि वर्चुअली इन कंट्रोल था आफ्टर द डेथ ऑफ शाहूजी महाराज, तो पेशवा को पेंशन ऑफ कर दिया कि आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो राजा भी नहीं हो, यू जस्ट लिव ऑन आवर पेंशन्स। राजपुताना, तो राजपुताना states had been dominated for several decades by Scindia and Holkar. So यहाँ पे Scindias and Holkars, एंड ये बिकॉज मराठाज वर पावरफुल, तो ये राजपुताना पे भी यही डोमिनेट कर रहे थे। हमने देखा कि 18th सेंचुरी में मराठाज वर पावरफुल, तो कुछ डेकेड्स, 4-5-6 डेकेड्स तो ये पावरफुल रहे। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मराठाज दे लैक्ड द एनर्जी टू रीअसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, दे राजपुताना स्टेट्स। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मराठास के अंडर थे, अब हमारे पास एनर्जी नहीं है कि हम ब्रिटिश को एक्सेप्ट करें, एंड दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो राजपुताना ऑल्सो केम अंडर द ब्रिटिश सॉर्ट ऑफ ओवरलॉर्डशिप। तो पैरामाउंटसी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया 1818 में। 1818 में क्या था, इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्टिंग पंजाब एंड सिंध हैड बीन ब्रॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, देन मैसूर, मराठाज, उसके बाद राजपुतानास, बंगाल पहले ही आ गया था। तो कितना एरिया आप देख सकते हैं, बचा था पंजाब एंड सिंध। पार्ट ऑफ इट वॉज रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश and the rest by a host of Indian rulers over whom the British exercised paramount power. Part of this thing. तो जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ एरियाज में अभी भी रूलर्स हैं, बट वो रूलर्स ही ब्रिटिश पैरामाउंटसी के अंडर हैं। एज अ पैरामाउंट पावर ओवर इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश रिजर्व्ड द राइट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दो स्टेट्स एंड मेड देयर फॉरेन रिलेशंस टोटली सबसर्विएंट टू द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने कहा कि आपके इंटरनल अफेयर्स में भी हम इंटरफेयर कर सकते हैं, एंड आपके फॉरेन रिलेशंस तो कंप्लीटली ही हमारे विम्स या हमारे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर है, हमारे इंटरेस्ट से सबसर्विएंट है। बचे थे पंजाब एंड सिंध, कैसे कैप्चर किए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। It occurred as a result of the growing Anglo-Russian rivalry in Europe and Asia and the consequent British fears that Russia might attack India through Afghanistan और Persia। तो उन्होंने सिंध भी कैप्चर कर लिया और बोला कि सिंध को we need to bring Sindh under control to act as a bulwark against Russian attack। Commercial possibilities of the river Sindh were an additional attraction। Chiefs of Sindh known as Amirs were made to sign a subsidiary treaty in 1839. Finally, Sindh was annexed in 1843 after a brief campaign by Sir Charles Napier। तो 1839 में सिंध भी अनेक्स कर लिया गया। अब बचा पंजाब। तो पंजाब हमने देखा था 1799 to 1839 महाराजा रंजीत सिंह का रूल था। After the death of Maharaja Ranjit Singh in June 1839, it was followed by political instability. Ultimately, power fell into the hands of brave and patriotic but utterly indisciplined army. British under Lord Minto I signed a treaty of perpetual friendship with Ranjit Singh in 1809, hoping to maintain Punjab as a buffer state. But after the death of Maharaja Ranjit Singh, उन्होंने देखा कि opportunity है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग वन ने एक्सप्लॉइट करी और अग्रेसिव पोस्चर अपनाया पंजाब के खिलाफ। महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी साइन करी थी 1809 में परपेचुअल फ्रेंडशिप की, बट ट्रीटी वायलेट कर दी गई 1845 में जब फर्स्ट सिख वॉर हुआ। वॉर बिटवीन द टू वॉज डिक्लेयर्ड इन 1845 ड्यू टू ट्रेचरी ऑफ सम ऑफ इट्स लीडर्स, जिनका नाम था लाल सिंह और तेजा सिंह। द पंजाब आर्मी वॉज फोर्स्ड टू कंसीड डिफीट and to sign the humiliating Treaty of Lahore in March 1846. The first war went to the British। Treaty of Lahore sign कर ली गई। इसमें British annexed the Jalandhar Doab and handed over Jammu and Kashmir to Raja Gulab Singh Dogra। तो जम्मू एंड कश्मीर
महाराजा रंजीत सिंह अपने रूल के अंडर ले आए थे, तो सिख एम्पायर का पार्ट था। तो आफ्टर डिफीटिंग द सिख्स इन द सिख वॉर, जम्मू कश्मीर ब्रिटिश के अंडर आ गया था, बट दे वर लाइक कि हमें ये मैनेज नहीं करना, वो दे दिया गया राजा गुलाब सिंह डोगरा ऑफ जम्मू। लेटर इन दिसंबर 1846 another treaty of Bhairovwal was signed giving the British resident at Lahore full authority over all matters in every department of the state। तो 1846 में पहली ट्रीटी के अंडर तो टेरिटरीज अनेक्स करी थी, देन दिसंबर 1846 में एक और ट्रीटी साइन करी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट भी अपॉइंट कर दिया और बोला कि रेजिडेंट को पूरी अथॉरिटी है हर डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करने की। बट उन्होंने कहा कि हम ये ढोंग हमने रचाया ही क्यों हुआ है कि इसको अनेक्स ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 1848 में सेकेंड सिख वॉर हुआ। अग्रेसिवली इंपीरियलिस्ट सेक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियलडम अनसेटिस्फाइड थे कि पंजाब में हमने ये पूरी तरह से अनेक्स क्यों नहीं किया, रेजिडेंट क्यों छोड़ा हुआ है। तो two Sikh Sardars, Mulraj at Multan and Chhatar Singh Atariwal at Lahore, they revolted. The British decisively defeated the Sikhs and Lord Dalhousie seized this opportunity to annex पंजाब। तो ब्रिटिश खुद भी अनहैप्पी थे कि हमने अनेक्स क्यों नहीं किया, मौका तो ढूंढ ही रहे थे। तो जब थोड़ा सा भी रिवोल्ट हुआ, द ब्रिटिश रिप्रेस देम, सप्रेस देम, लड़ाई हुई एंड दे वर डिसाइसिवली डिफीटेड। एंड इस सेकेंड सिख वॉर के बाद पंजाब को अनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में। Thus the last independent state of India was absorbed in the British Empire of India. So this is how इकलौती जो पंजाब स्टेट बची थी वो भी अनेक्स कर ली गई। सो बंगाल, देन वी सॉ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, देन मैसूर, देन मराठाज, देन राजपुतानाज, देन सिंध, देन पंजाब। तो ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। डलहौजी एंड हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब जो भी कुछ बचा था नहीं बचा था, डलहौजी ने बोला कि वो भी अनेक्स करेंगे। नॉर्थ में दिल्ली में देर वॉज सम सेम्बलेंस ऑफ मुगल रूल, कि एटलीस्ट मुगल्स सिम्बॉलिक तो अथॉरिटी थे ही थे, चाहे एक्चुअली पावर उनके पास बिल्कुल नहीं बची थी। इनफैक्ट टेरिटरी भी हार्डली कोई रह गई थी, बट ठीक है दिल्ली में तो मुगल्स थे। Lord Dalhousie, he was determined to extend direct British rule over as large an area as possible। तो वो क्या करते थे, अब वो कहते थे कि हमने सबको वॉर में हराया हुआ है, सब अगर किसी भी टेरिटरी में कोई भी रूलर रूल कर रहा है तो ब्रिटिश ओवरलॉर्डशिप सुजेरेंटी एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनको हम राजा की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रखें, इनको डायरेक्टली ब्रिटिश टेरिटरी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाते हैं। उसके लिए हमें इन्हें अनेक्स करना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अब वो और तो वॉर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही उनको दबाया हुआ है। सो द इंस्ट्रूमेंट दैट लॉर्ड डलहौजी डिवाइज्ड वाज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें वो उन्होंने क्या कहा कि व्हेन द रूलर ऑफ अ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, हिज स्टेट वाज नॉट टू पास टू एन अडॉप्टेड हेयर, इंस्टेड कि वो ब्रिटिश, इट वॉज टू बी अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश डोमिनियंस। कि अगर किसी प्रोटेक्टेड स्टेट, किसी टेरिटरी का रूलर अगर मर जाता है जो टेरिटरी हमारे प्रोटेक्शन के अंडर है, तो उसका नेचुरल एयर अगर नहीं है तो उसके अडॉप्टेड एयर को उसकी टेरिटरी नहीं मिलेगी, वो ब्रिटिश डोमिनियंस का पार्ट बन जाएगी। अनलेस द अडॉप्शन, जो वो अडॉप्टेड एयर है, इट हैड बीन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज अर्लियर। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारी टेरिटरीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। Satara 1848, then Nagpur, then Jhansi in 1854, they were annexed by applying the doctrine of lapse. Dalhousie also refused to recognize the titles of many ex-rulers or to pay their pensions. तो पेशवा को हमने देखा था कि ब्रिटिश had pensioned off after defeating him in the third मराठा war, but डलहौजी ने कहा नहीं, पुराने बंदे दे गए, I don't recognize you. He stopped paying their pensions. Thus the titles of Nawabs of Carnatic and of Surat
and the Raja of Tanjore were extinguished and pension was refused to Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II. तो बिल्कुल ही राइट्स या प्रिविलेजेस एक्नॉलेज करना बंद कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने. देन अवध. तो अवध अपने कंट्रोल के अंडर तो लेके आ ही चुके थे. सब्सिडरी अलायंस साइन करने को फोर्स कर ही दिया था अर्ली 19th सेंचुरी 1801 के आसपास हमने देखा था. तो डलहौजी वॉज कीन ऑन अनेक्सिंग द किंगडम ऑफ अवध, बट नवाब्स ऑफ अवध हैड बीन ब्रिटिश एलाइज सिंस द बैटल ऑफ बक्सर. अब नवाब ऑफ अवध हैड मेनी heirs एंड कुड नॉट देयरफॉर बी कवर्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑल्सो. तो क्या करें? An ingenious method, Lord Dalhousie hit upon the idea of alleviating the plight of the people कि आपका मैं समाज सुधार करूँगा, आपके लोगों की जो प्रथा है बहुत बुरी है, मैं इसको अमिलियोरेट करूँगा, मैं एलिविएट करूँगा, मैं इसको ठीक करूँगा, मैं सुधारूँगा. नवाब वॉज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग मिसगवर्नड हिज स्टेट. तो नवाब को बोला कि आप मिस गवर्नेंस कर रहे हो एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सही गवर्नेंस लेके आएगी, और ये रीज़न देके उसकी टेरिटरी अनेक्स कर ली गई 1856 में. तो 1856 में यहाँ तक हम पहुँच गए हैं. अवध भी अनेक्स कर लिया गया है. अब अभी तक हमने जो देखा है उसकी क्रोनोलॉजी वी कैन ट्राई टू स्टडी अगेन. तो दैट पार्ट विल डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट फ्रेश वीडियो, जहाँ पे हमने अभी तक जो मराठा वॉर्स, मैसूर वॉर्स, सिख वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर्स, ये सब हमने देखे हैं. इनको वी कैन पुट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द गवर्नर जनरल्स. तो that short video just for your revision, just for your memorization, will make a separate new one. तो नए वीडियो में देखेंगे. अभी तक हमने 1856 तक ब्रिटिश एक्सपेंशन स्टडी कर ली है. एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे कि 1746 में जब एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स शुरू हुए, वहाँ से लेके 1856 तक 110 साल जो थे, इस पूरे 110 साल में जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हमने देख ली, बट हम देखेंगे कि और पॉलिटिकल चेंजेस क्या आई, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चेंज हुई, पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुई, सोसाइटी में क्या चेंजेस आई, ब्यूरोक्रेसी कुछ आई नहीं आई, क्या चेंजेस आई. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक फ्रेश वीडियो में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.